Nicely bowled, very nicely played with soft hands. So in fact, it is 9 runs now. 8 runs of the previous ball, 9 without loss after the completion of first over. Rupesh 11, Betul. एक अच्छी शुरुआत सामने टॉस जीता MS धोनी गंगावती कर्नाटक क्रिकेट टीम मुकाबला करती हुई रूपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम के साथ। दोनों टीम हरीसर एक एक मैच को जीत चुकी है, तो यह मैच बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीमों के ओर से। स्कोर 9 रन, पहले ओवर का खेल समाप्त। मोहम्मद बल्लेबाजी कर रहे, 2 पर रमीज खेल रहे, एक चौका लगा चुके, 6 पर खुद के व्यक्तिगत, और दूसरी ओवर में गेंदबाजी के लिए आ चुके। खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए पीटी जॉनसन गेंदबाजी करने के लिए। A player of the game award winner in the first game outing against Goa Police. Good spell here. 2 6s were taken off his bowling by Sai Zore, but he gets rid of Sai Zore. And then very good, intense over that he bowled. The penultimate over, the fifth over that has given the driver's seat in the last over, going in for MS Dhoni in the last over. And they won it comprehensively in the end. This is the length, this is the line. He mixes up and also tries to bowl a good fielding in the short covers region, trying to shy at the stumps. Slightly slow of the box is what I've seen Mohammed, but then he had to scamper in the last leg a couple of steps quickly and then stretching himself. What I'm witnessing at the moment from both these batters, I feel they are not going for the big shot. They feel here there is a target in the mind. They feel that somewhere around 60, 65, 70 might be good enough. They've got pretty good bowlers in the rank. This is going to be a cat and mouse encounter here at the moment, is what I feel. The someone this time hooked away, and he has placed it well. Placed it well. Wonderful placement. He knew exactly there was a man in the deep in the cow corner region, but he just closes the face nicely to get it towards the right hand side of the fielder. One bounce, 4 runs. Never try to hit the ball hard. Always with the timing and placement, and a skillful player as he is, Mohammed, getting a boundary. 14 without loss in the second over. Oh, what a ball. This is a good delivery. Don't know where he was running over there. Don't know where he was running. He was just loitering in the gardens trying to water the pitch. And here is a replay. He knew that the ball had gone behind, but he didn't know that it had gone straight in the hands of the keeper. And it has been referred on top, going to the review, going to the third umpire. So let's see. The review has been taken. He was shuffling across. Definitely not given a LBW. They are trying to review here whether he's run out or not. He comes back. Certainly might be very, very close. He has grounded the bat, but it is definitely very, very close. Whether the bat has gone inside the popping crease when the bells had come out, or whether it is on the crease, it's just a fraction of second, and just you can say millimeters. It's in millimeters, not even centimeters. That's how close it is. लाईनवर पॉज करा लाईनवरती पॉज करा नंतर स्लो मोशन मध्ये पुढे Here it is. They are having a look. Now it is on the crease, and once the bells come out, umpire has to judge it whether he has made it in. So not out is the signal. The benefit of the doubt goes to the batter because the frame that we have got in the slow motion replay is just enough. When the bells had not come off the grooves, that time the bat was on the crease, the popping crease. But when the bells come out,
taken off by the keeper. That time the bat has been grounded slightly inside the popping crease. So he gets the benefit of the route, and no run has been taken here. So a dot ball. Very good backup delivery here from P.T. Johnson. He was taken off, clipped on the leg side for a boundary, but then Bowles fires it in on his pads, struck outside the lining of off stump. There was a shout there from the bowler. He survives the batter. Very nicely stopped off his follow through in his own bowling mark. Nicely struck, very well struck here, almost close to the Yorker length, dug out, hit it straight. It is a hit the almost close to that wrist position, the ball. Once again, P.T. Johnson, in spite of going for a boundary, certainly knows how to make a comeback. He has got the pace, he has got uncanny variations of the pace that he mixes up very well. 15 without loss in the second over so far. Again, not middling the ball at the moment, trying to hit the ball too hard. They are getting the singles at the moment. Both Ramesh and Mohammad, they have not lost a single wicket. Rupesh 11, Betul at the moment. Somehow I feel it is not easy to get against these bowlers. We have seen how Goa Police struggled against P.T. Johnson in his second over. 16 runs at the moment. Just 7 runs taken off his over so far with the ball left. This time flicked away. There is a man in the deep. He gets it over the fielder in the square leg region and trying to get a couple of runs. Once again struggling in this run out opportunity. What a throw this is. What a fielding effort. Magnificent, I must say. There was the timing of the jump. You can see the replay. The jump from the fielder coming all the way from cow corner region towards the square leg region. And then it was thrown back by the fielder from the square leg going into the deep. The throw and going to the keeper coming in front, trying to collect the ball little early and shying at the stumps. I think he's struggling there. He is gone, and that's a good relay fielding effort. The bat is in the air and Mohammad has to go back, courtesy of a fabulous all-round fielding effort. It was 3 fielders into motion over there, trying to be in action and trying to get the wicket in the form of run out, and all 3 have gelled well and got the big breakthrough of Mohammad. He goes back and he has played a knock of 8 of just 7 balls. So is the score of at the moment 17 on the board after completion of 2 overs. 17 for 1. It is Betul 11, Rupesh 11. So Rupesh 11 at the moment not having the best of the starts. Certainly not. They were expected to get a very good start, especially in the power play overs. But I think both the bowlers have kept them in check, kept the boundaries and kept the sixes at bay. And that's exactly why it is going at 8.5 runs per over. MS Dhoni Gangavati, Karnataka is what they come from. We have shown their depth in bowling department in the previous game against Goa Police. Goa Police are a strong force to reckon with, and still they have defended 65 runs. Full toss ball, missed opportunity by Ramesh. He's certainly going to think about it. He likes to go towards the backward point region. They are trying to bowl outside. He thinks that this is a no ball, and we are going to have a review here. Review taken by Ramesh at the moment. Ramesh thinks that it is just above the waist height. I think yes, now we will take the decision. Please go with the slow-mo in the square angle. So it's a no ball above the waist height and a right call here from the batter there, Ramesh, understanding that it was above the waist height, well above. So it's going to be an extra ball to be bowled here. Error here from the bowler in his bowling mark. This is almost once again Vicky Boyle bowling a no ball above the waist height, but it was not onto his body line. It was outside, so it is not going to be considered as a beamer. So this ball is going to be a free hit. This time whacked away on the leg side. There's a fielder and that extra bounce getting it top of the fielder and getting a 1 bounce boundary in the backward square leg region.
You can see sometimes when a bowler is trying to make an error, trying to bowl Yorker length delivery, is trying to bowl with pace. Sometimes he bowls full toss or beamers, and that pace in the mind of the bowler, he feels that I'm missing the length at the moment. I just got 6 balls to be bowled at the moment, and you feel that that pressure creeps up when you bowl a beamer in the very first ball. Clipped away on the leg side, looking for a couple of runs. Ramesh, no, they settled with a single here. The boundary has given them a good start. Just the 2 balls have been bowled. The first one being a beamer, and then a boundary, and then a single. That's exactly how this over has gone so far. They are trying to keep the left and right hand combination going at the moment. Punaji Kalangutkar on strike, is taken the single, and now it will be left-hander Ramesh on strike. Lovely bowling. This is the best ball that he can bowl. The Yorker length delivery, the Brahmastra in the form of cricket anytime. Perfect length, perfect area, just outside. Ramesh is trying to wait for his opportunities. He knows that he has started well in the previous game, but faltered when he was out, and he was his team then and lost 6 wickets. So he is trying to take the game deep. He's trying to maybe see the third or the fourth bowling option at the moment from the opposition camp. Trying to work the ball around, change of pace. This is his forte. This is his strong zone. He, with the same sort of delivery stride, same sort of action, just cuts the ball as an off cutter. And you feel that it is a medium pace ball that Vicky Boyer is bowling, but it is not. That comes off slow of the box, and that is exactly what bamboozles the batter. Perplexed this delivery coming from Vicky Boyer. Excellent. So again in the air, just over the head of the fielder, just away from the fielder, looking for a couple of runs in the deep extra cover region. Nicely opening the face of the bat just to play it away from the fielder in the point region and get it away from the deep covers as well. Just getting a single. Pretty good fielding so far, what we have seen from MS Dhoni. They are a very good bunch of athletic outfielders and infielders as well, taking the diving catches and acrobatic stuff at times from MS Dhoni. That is what exactly is required. Fielding is also now an important part, an important aspect of your entire unit. Oh, cracking delivery right in the block hole. Once again, that change of pace. You expect that the ball is coming as an express train. It is coming down as a local train. Change of pace, fabulous delivery, and a good comeback, I must say, from Vicky Boyer, in spite of starting off with the bouncer that first ball beamer, in fact. So that marks the end of the third over, and it's 27 for run. They are going at 9 runs per over. Rupesh 11 Betul, and expected to go somewhere around 60 to 65 runs is this team, but somehow I feel they have not gone to an explosive start, a steady start. They need one over to get them the momentum. Rupesh 11 side Betul. At the moment, the bowling is looking very strong. All the bowlers have bowled well and bowling exactly where it is required to be bowling in the tennis ball cricket, just outside the off stump. So things are quiet at the moment for Rupesh 11. You expect firecrackers from Ramesh or Punaji Kalangutkar at some point of time. They have kept the left and right hand combination going. And Ashok sir, what is your expert opinion for the next 3 overs at the moment with 27 for 1? थैंक यू, धन्यवाद हरीश जी। 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाती हुई मैदान पर रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम। अब तो की अगर चर्चा की जाए हरीश सर, तो अच्छी गेंदबाजी की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। विकी बोयर का 2 ओवर का कोटा समाप्त हुआ, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 19 रन, कोई सफलता जरूर नहीं मिली, लेकिन बड़े शॉट पर रोक लगा दी। खुद का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेकर पीटी जॉनसन, और सामने अब बल्लेबाजी पर 2 बल्लेबाज है मैदान पर। रमेश एक चौका, पुनाजी कलंगुटकर ने आते हेलो ड्राइव किया, इस बार गेंद को ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ पर, और जब तक लगभग एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते आते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक सिंगल, चौथा ओवर शुरू हो चुका है, 28 पर पहुंचा टोटल स्कोर। खुद का दूसरा पीटी जॉनसन गेंदबाजी कर रहे, टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला MS धोनी गंगावती कर्नाटक क्रिकेट टीम, और रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम मैदान पर। बल्लेबाजी स्ट्राइक पर बल्लेबाज है पुनाजी
पुनाजी कलंगुटकर स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद उड़ाया ऑन साइड पर, डीप मिड विकेट पर, और गेंद चली गई सी मारिका से बाहर। एक गगनचुंबी सिक्सर पुनाजी कलंगुटकर के बल्ले से। फुल टॉस गेंद थे और फुल टॉस गेंद पर कहा मौका छोड़ेंगे पुनाजी जैसे बल्लेबाज। आप देख सकते हैं, रिप्ले दिखते सफल हुए और बहुत अच्छा शॉट, बीचों बीच लगी गेंद मिड विकेट पर, हवाई फायर, और मिले 6 रन स्कोर के खाते में। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 34 रन पर। हरीश सर ने चर्चा की थी 60, 62, 65 की। बिल्कुल सर, आपसे सहमत हूँ। उसी स्कोर की ओर लेकर जाना पड़ेगा रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम को, क्योंकि दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। इस बार भीतरी किनारा लेती हुई गेंद, खेलना कहां पर, गेंद कहां पर निकली, लेकिन चलिए रन तो बनते हुए स्कोर के खाते में। काउ कॉर्नर से आते मिड विकेट की तरफ गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 35 रन। एक विकेट के नुकसान पर एकमात्र विकेट मोहम्मद 8 पर एक चौका लगाकर आउट होकर वापस सफलता मिली थी पीटी जॉनसन को। और उसके बाद ये साझेदारी लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर रमेश सामना करते हुए। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, छोटी गेंद थी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रमेश के लिए आए थे पीटी जॉनसन, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर 3 फील्डर तैनात है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। एक 18-20 कदमों के रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स के ओर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट पीटी जॉनसन बॉलिंग मार्क पर। बड़ा शॉट लॉन्ग अप पर, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे बाउंड्री लाइन पर। एक आसान सा मौका बना और दूसरी सफलता मिलती हुई एमएस धोनी गंगावती कर्नाटक क्रिकेट टीम को। कैच को पकड़ा और एक छोटी सी पारी समाप्त हुई मैदान पर। रमेश की एक चौका अपने बल्लेबाजी में, स्कोर टोटल 35 रन, एक विकेट के नुकसान पर, और आउट होकर वापस खुद के व्यक्तिगत 13 पर 13 गेंदों का सामना करके एक चौका लगाते हुए रमेश आउट होकर वापस दूसरे विकेट खोते हुए मैदान पर रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम। आप देख सकते हैं रिप्ले, देखिए थोड़ी सी ओवर पिच गेंद जरूर थी, लेकिन दूर से खेला था। इस बार गेंद के पिच पर नहीं थे और इसलिए वो ताकत नहीं लगी शॉट के ऊपर, नहीं तो ये गेंद लॉन्ग अप के फील्डर के ऊपर से निकल सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और दूसरा धक्का लगता हुआ और पुनाजी कलंगुटकर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए। फिराज मोहम्मद जो न्यू बैटर जाते हुए। सफलता पहले ओवर में भी एक सफलता हासिल की थी और इस ओवर में अपने दूसरे स्पेल में जो कि चौथा ओवर मैच का, उस ओवर में भी एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, क्योंकि अच्छा खेल रहे थे रमेश। 13 पर 13 गेंदों का सामना करते हुए एक चौका, और सामने और एक लेफ्ट हैंडर बैटर फिराज मोहम्मद साथ जो कि सामना करते हुए। हल्के से ड्राइव किया गेंद को, इस बार कवर की तरफ, लगभग कवर पॉइंट पर आते फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल, अपना खाता खोला इस एक रन के साथ। और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद प्रति ओवर 9 रन के साथ रन बनाते हुए रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम टोटल 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आज का 5वां दिन, दोपहर का सत्र, वज्र स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब का आयोजन, 5 लाख रुपए का एक बड़ा इनाम इस चैंपियन क्रिकेट टीम को। संगम प्रीमियर लीग 2024-2025, और देखना होगा ये दो टीम आमने सामने एक एक मैच को जीत चुके हैं। और बॉलिंग में परिवर्तन दिखाई देता हुआ चौथे ओवर के बाद रनगति को बढ़ाना पड़ेगा और पुनाजी मैदान पर है। पुनाजी का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आ चुके फिराज मोहम्मद, तो कहीं ना कहीं रन गति बढ़ाना पड़ेगी। 60, 62, 65 के आसपास जाना पड़ेगा। सामने उतनी शानदार बल्लेबाजी है एमएस धोनी गंगावती कर्नाटक क्रिकेट टीम की। बॉलिंग में परिवर्तन, गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं सलीम शेख। सलीम शेख आ चुके हैं बॉलिंग मार्क पर। पांचवें ओवर की शुरुआत सामने से
और पुलर लेन की गेंद हल्का सा अपील, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल रही थी। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल लेग बाइज का इशारा और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 37 पर 2 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी फिराज मोहम्मद 1 पर, पुनाजी कलंगुटकर 12 पर गेंदबाजी करते हुए सलीम शेख जो 5वां ओवर। फुल टॉस गेंद, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम शॉट मैं कहूंगा। गेंद बड़ी देर तक हवा में नो मैच लैंड में, एक रन के लिए ग्लेस्कर लेग बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। एक फुल टॉस गेंद थी लेकिन उतना फायदा नहीं मिला बल्लेबाज पुनाजी कलंगुटकर को, सिर्फ 2 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। एक बार फिर से सामने स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन। ऑफ साइड पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली, एक कवर पॉइंट, एक डीप कवर पॉइंट। बड़ा शॉट ओवर पिच गेंद पर एक लेफ्ट हैंड शॉट वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोशिश जरूर रही थी लेकिन गेंद उनसे पहले निकली सीमा रेखा से बाहर। एक लाजवाब छक्का 6 रन के लिए। देखा जायदाद ले रहे अंपायर, इशारा तो कर चुके थे लेकिन कॉल आ चुका है अंपायर का। देखिए किस तरह से यह शॉट लगाया था, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब टाइमिंग। और क्या कैमरा वर्क टेनिस क्रिकेट डॉट इन से रिप्ले दिखाई जा रहा है कि देखा जा रहा है इस शॉट को, या 4 है या 6 है, यह देखा जा रहा है। तो जो तीसरे अंपायर का इशारा वो होता हुआ गेंद 6 रन के लिए चली गई थी लंगन सीमा रेखा से बाहर। पुलर लेन की गेंद फिर से उसी इलाके में स्क्वायर लेग पर मिड विकेट पर खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी से आगे रखा गेंद की लाइन को, गेंद पैरों पे टकराई, विकेट कीपर आते और वापस एक बार फिर से गेंदबाज सलीम शेख अपने बॉलिंग मार्ग पर 2 छक्के 1 चौका। अब तक पुनाजी के बल्लेबाजी में एक अच्छी इनिंग खेल रहे, 20 पर खुद के व्यक्तिगत स्ट्राइक पर सामना करते हुए। अच्छी गेंद, एक अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद, और जब तक शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड करते, पहला रन दूसरे के लिए हाना हाना कर रहे थे, खतरा बन सकता था रनआउट का, लेकिन अपने आप को मना किया दोनों बल्लेबाजों ने और एक सिंगल के साथ 21 रन पर खुद के व्यक्तिगत पुनाजी कलंगुटकर और टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी है मैच का 5वें ओवर का, आने वाला ओवर जो आखिरी ओवर, लेकिन उससे पहले फिराज मोहम्मद स्ट्राइक पर सामना करते हुए। फुल टॉस गेंद बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन पर फिर से दोनों के बीच में थोड़ा सा तालमेल में गड़बड़, मैदान पर आगे निकले थे पुनाजी लेकिन वापस चले गए और इसी बीच ओवर की समाप्ति हुई। एक बड़ा शॉट इस ओवर में जरूर लगा, छक्का लगा और इसी के साथ खेल टोटल समाप्त हुआ 5वें ओवर का। 5 ओवर समाप्त हुए और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 46 रन 2 विकेट पर, फिराज मोहम्मद 1 पर, पुनाजी कलंगुटकर 21 पर। और देखना होगा आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं और कितने रन बना लेती है रूपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम, कितना टारगेट रखती है MS धोनी गंगावती कर्नाटक क्रिकेट टीम के सामने। काफी धूप गर्मी जरूर महसूस हो रही है लेकिन उसी के साथ थोड़ा सा हवा का बीच बीच में झोंका भी आ रहा है।
So 5 overs gone, 46 for 2 at this moment. Punaji Kalangudkar playing well on 21 of 9. Firaz has come onto the crease. You expect a score of at least 60 runs to trouble MS Dhoni team. बैकफुट पर कट किया इस बार, खूबसूरती के साथ फील्डर मौजूद एक्स्ट्रा कवर पर, सीधे हाथों में गेंद और एक धक्का लगता हुआ रूपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम को। अगले मैच के लिए हम कॉल कर रहे हैं, आइए प्लीज, बेंगलोर ग्लैडिएटर्स और गोवा पुलिस। इस मैच समाप्ति के बाद जो एक पहले इनिंग में छोटा ब्रेक होगा, उस ब्रेक में टॉस किया जाएगा। तो आइए कैप्टन गोवा पुलिस और उन्हीं के साथ बेंगलोर ग्लैडिएटर्स। तो अच्छा कैच, एक अच्छी इनिंग, लेकिन जब जरूरत थी मेरे ख्याल से जो कि आक्रामक बल्लेबाजी के बड़े शॉट के, वहीं पर अंतिम ओवर में पहली गेंद पर एक सफलता मिलती हुई 21 पर पुनाजी कलंगुटकर आउट होकर वापस, तीसरा विकेट और टोटल स्कोर रुका हुआ 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए जिस तरह से जो कि रिप्ले में कैच पकड़ा था एक्स्ट्रा कवर पर। Yes, it was not a bad shot, Ashok sir. It was nicely played, in fact, off the back foot on the rise. But there was a man placed for the same shot because they have studied, I think, Punaji Kalangudkar, where he plays and where he marks his fielders. क्या मौका बनेगा जी? नहीं, काउ कॉर्नर पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए 50 रन पूरे होते हुए रूपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आते आते एक अच्छा शॉट बल्लेबाजी में, सज्जित के बल्लेबाजी में निकलता हुआ, और इसी के साथ 50 रन पूरे। लेकिन अभी भी हरीश सर, मैं कहूंगा एक आध दूसरा और शॉट होना चाहिए। एक 60 का टोटल मायने रखेगा, सामने अच्छी बैटिंग लाइनअप है, गेंदबाजी भी रूपेश 11 बैतूल की अच्छी है, लेकिन 60 का टोटल एक थोड़ा सा दबाव रहेगा मैच के साथ बल्लेबाजी पर। देखना होगा क्या होता है फिलहाल इस आने वाली गेंदों पर। अच्छी गेंद, इस बार हल्के से खेला डीले हाथों से, पहला रन बड़ी तेजी के साथ लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर दूसरे के लिए पलटे और जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर, विकेटों के बीच में शानदार दौड़ और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। अच्छा क्रिकेट, बड़े शॉट जब नहीं लग रहे तो आपको सिंगल डबल वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहते। 2 रन बन गए स्कोर में, स्कोर पहुंचा 52 पर 3 विकेट पर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, आखिर में थोड़ा सा उंगलियों को फेरा था, इस बार कट होकर उछाल भी मिली, बाहर की तरफ निकले और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के। अंपायर का इशारा हो चुका इस गेंद के लिए, जो देखा जाएगा। Yes, review has been taken because the review was successful. You retain the review. So let's see. One review remaining here. Back of the end, slower ball just outside. Looking forward, well inside. It is well inside that guideline marked for the umpire. So I think the review rested here. Fair delivery. तो फेयर डिलीवरी और शोएब बॉलिंग बार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए, पुलर लेन की गेंद, फिर से एक बहुत अच्छी गेंद, विकेट के पर तेजी के साथ आए, कहीं और एक रन न बन जाए ये देखकर, विकेट के ऊपर तेजी के साथ स्ट्राइक जो कि बदल न जाए ये देखकर विकेट के ऊपर क्या अच्छी सोच। लगातार 2 बिंदी गेंदे इस ओवर में, स्कोर रुका हुआ 52 3 विकेट के नुकसान पर और सामने स्ट्राइक पर एक चौका 6 पर सज्जित सामना करते हुए इस ओवर को। Beautiful bowling, one slower ball, then right in the block hole, the next one, mixing up well. Whacked on the leg side. There is a fielder coming from the cow corner region, looking for a couple of runs. This is almost the last ball of this entire innings, and they storm for the couple of runs to finish this over. Ashok sir, 54 for 3 in 6 overs. Well, I think they are somewhere around 10 runs short. You expect 65 runs, 62 to 65 runs to be scored by any side batting first, because that gives a cushion for the bowlers as well. One weak over, one loose over, you have got a time to come back in the second innings. 54 runs. Let's see whether Rupesh 11 can defend it or not. बिल्कुल सर, एक 62-65 का टारगेट होना चाहिए था। 1-2 शॉट पीछे रह गई, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी गेंदबाजी,
ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, एक का दूसरा बेहतरीन कैच, एक का दूसरा रनआउट का विकेट मायने रखेगा। 55 का टारगेट, और देखते हैं जो बल्लेबाजी रमेश आउट हुए थे 13 पर, पुना जी के एक शानदार बल्लेबाजी 10 गेंदों में 21 रन, लेकिन बाद में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। गेंदबाजी मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही, खास करके आखिरी ओवर में एक ही चौका लगा, और देखा जाएगा गेंदबाजी। विकी बोयर अच्छा स्पेल, 2 ओवर 19 रन, कोई सफलता नहीं। पीटी जॉनसन 2 ओवर 17 रन, 1 विकेट। सलीम शेख 1 ओवर 9 रन, कोई सफलता नहीं। और शोएब कुरैशी 1 ओवर 8 रन। तो And now that's how the spell is. I think this bowling attack is pretty good. You can start Vicky Boyer starting the proceeding. P.D. Johnson as the left-arm medium pace bowler, very economical most of the times. Also a wicket-taking bowler. Salim Sheikh, Shoaib Qureshi. All are different actions and different trajectories the bowlers bowl. Medium paces I can understand, but they have got wonderful brains. They are mixing the slower back of the hand, sometimes firing it in close towards the Yorker length delivery, sometimes outside the off stumps. Unpredictable is I can say MS Dhoni Gangawati team, and that's the reason why they are one of the strongest bowling unit of the day. One team that can almost defend 65 runs against a strong Goa police outfit should be considered as a pretty good bowling unit. Rupesh 11 team is no mug. They have got players from Kerala. They have got the strong players like Rupesh Gavkar, Punaji Kalangudkar playing here for this team. Rupesh is not seen in this particular game, but the strongest outfield as far as batting is concerned. And if you can restrict this strong team to just 54 runs, so the credibility of the bowling lineup of MS Dhoni can certainly be seen in this scoring mark as well as the entire table. And that's why they are a team to beat at the moment. They just require 55 runs. Let's see how strong is the bowling at the moment. Most of the bowlers are from Kerala of Rupesh 11 team. Certainly this fight back is going to be worth. Goresh Nagvekar, Ghungru as we call him, is the pace spearhead who had picked up a couple of wickets as well in the earlier game, and who is one of the paciest around as far as Goan tennis ball player is concerned. So lot at stake. They need to really start well, Rupesh 11, especially in the power play overs, not trying to give too many, bowl in the right areas and pick up at least a couple of wickets. We have seen the strength in 4 to 5 batters of MS Dhoni. They are very strong up the order, especially top 5 are very good. They are skillful, playing both sides of the wicket, has got the switch hits as well. They need to take the early breakthroughs if they need to win this game. This is all to play at in this important encounter. Whichever team wins here is certainly going to go directly into the quarter league stages. So let's see which team wins. Half the part job has been done well here by the MS Dhoni Gangawati team, and half the job is remaining. थैंक यू सर। 36 गेंदे 55 रन मैच को जीतने के लिए। और चलिए टॉस के लिए आइए प्लीज, दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द आइए। अगला मैच तुरंत खेला जाएगा। हम हमेशा जो कि पहले इनिंग के ब्रेक में टॉस करते हैं, तो आपको जल्द से जल्द आना पड़ेगा। और 36 गेंदे 55 रन, दूसरी इनिंग की शुरुआत। और कॉम्बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं प्रशांत आदौड़े के साथ। चालू इनिंग के 3 ओवर के पहले अगर दोनों टीम के कप्तान आते नहीं है तो पेनल्टी लगेगा। गोवा पुलिस और बैंगलोर ग्लैडिएटर के कप्तान 3 ओवर खत्म होने से पहले दोनों टीम के कप्तान रिपोर्ट करेंगे टॉस के लिए। वेलकम बैक, सभी का स्वागत है सांघिक प्रीमियर लीग 2024 का 5वां दिन। और फिलहाल रुपेश 11 बना MS धोनी। ये बहुत बड़ा मुकाबला, 36 गेंदों में 55 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ऑल सेट, प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर। फिलहाल आकाश के पास भी काबिलियत है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है। रियाज इम्पैक्ट प्लेयर, और रुपेश 11 बैतूल टीम के रियाज को इम्पैक्ट प्लेयर के बतौर पर इस्तेमाल किया गया है। 36 गेंदों में 55 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। आकाश जहांगीर बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। और दूसरी एंड पर फिलहाल आप देख सकते हैं फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए हरदीन, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले फरदीन मैदान के अंदर।
क्रिकेट की परिभाषा में अगर कहा जाए तो वो इनफॉर्म बैटर है और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग, विकेट कीपिंग और बैटिंग बहुत बढ़िया करते हैं। और सामने से देखिए इस मुकाबले में रूपेश 11 को 55 रन डिपेंड करने हैं। मैंडेटरी पावर प्ले, फ्लाइंग स्लिप इस वक्त एक खिलाड़ी पॉइंट पर, कवर पर, स्टक कवर, मिड ऑफ ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी ऑफसाइड पर है तो वो 4 खिलाड़ी ऑनसाइड पर। अच्छी गेंद टपा खाते थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद के पीछ तक नहीं थे बल्लेबाज आकाश जहांगीर। फरदीन काजी के पास काबिलियत है, स्क्वायर द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत सारे फैंसी स्ट्रोक खेलना वो पसंद करते हैं। और गुरनेश गेंदबाजी कर रहे हैं, गौरेश गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल, गौरेश नागवेकर। गौरेश ने पहले मैच में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और केवल 3 रन खर्च किए थे, नपीतुल्य गेंदबाजी। इस मैच में उसी तरह का एक्सपेल चाहिए। और सामने बल्लेबाजों की बात करते तो फरदीन काजी जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमेशा निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। मिडल का खिलाड़ी दायरे के अंदर, डीप मिड विकेट, डी स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन की तरफ है, फाइन लेग पर दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। कम बॉक्स में अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए, एक लीजेंड कमेंटेटर है। और अशोक जी आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, सामने एक बहुत अच्छे गेंदबाज है, तो ये बिल्कुल मजा आ जाएगा गेंद और बल्ले के बीच में कौन जो कि बाजी मारता है मैदान पर। देखना होगा गौरेश अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर से इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। ओ लाइन पर भटके, लेग स्टंप से बाहर, अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। दिशाइन गेंद लेग स्टंप के बाहर। कभी कभार क्या होता है अशोक जी, आप मिडल और लेग स्टंप पर गेंदबाजी करना चाहते हैं और आपका हाथ कान से बहुत करीब जाता है, गेंद अगर लेग स्टंप के ऊपर पिच हो जाएगी तो लेग स्टंप के बाहर जाएगी। गौरेश फिलहाल लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। टप ऑफ टेक के बाहर, यह सही लाइन है, बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाते थोड़ा नीचे रही है, गेंद को कट करने का प्रयास किया गया फरदीन काजी द्वारा। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। बहुत अच्छी गेंद थी, एक तो तेज गेंद थी, नीचे रही थी और बल्लेबाज ने कोशिश भी की थी और ऑफसाइड पर कट करने की, लेकिन सफल नहीं रहे। जाल बिछाया बिल्कुल ऑफसाइड पर गौरेश नागवेकर ने फरदीन काजी के लिए। ओवर पेज एक लेफ्ट शॉट ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे। ओहो हो, क्या छूटा, कहीं मैच हाथों से नहीं प्रशांत जी छूट ना जाए। और किसका कैच आपने छोड़ा है वो देखा जाएगा। और ये तो मेरे से हिसाब से लड्डू था, शादी का समय नहीं, लड्डू बांटने का समय नहीं है। ये मुकाबला बहुत बड़ा है, सामने दिग्गज खिलाड़ी है और फॉर्म में खिलाड़ी, उनका आपने क्या छोड़ा है, क्या छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर टूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। बिल्कुल, मैच जो कि शुरू हुई थी तब हमने बात की थी, आपको अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग, एक बेहतरीन कैच, एक रनआउट का विकेट मैच में फर्क कर देगा। इस बार सामने खेला, मिड ऑन पर मौका जी, अब बिल्कुल कोई गलती नहीं। अब विवेक मोहन जो गेंद के नीचे आते कैच को दबोचते हुए सफलता मिलती हुई, कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और वही सफलता, पहला धक्का लगता हुआ टीम को। अशोक की इस अच्छी बात के मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से गौरेश गेंदबाजी कर रहे हैं, एक खुशियाँ वो लेके आ रहे हैं, खुशियाँ लेके आ रहे हैं। एक बार आपने लौटाने का काम किया, दूसरी बार देखिए मोहन साहब वहाँ मौजूद थे मैदान पर, बहुत अच्छा मतलब का बल्लेबाज आकाश जहांगीर बैक टू द पेविलियन, आज अपना खाता नहीं खेल पाए और 2 गेंदों का सामना किया, निराश है। निगाहें देखिए, निगाहें इनकी कहाँ है, ज़मीन की तरफ। अगर यही बल्लेबाज 40 रन बना के आता तो निगाह बिल्कुल कैमरे के सामने होती। तो ये क्रिकेट में होता है। गौरेश बहुत अच्छी गेंदबाज है। विकेट देखिए किस तरह से गिर गया था टेनिस क्रिकेट .in पर। एक्शन रिप्ले आपको दिखाया जाएगा जिस तरह से मुकाबला चल रहा है। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, चौथी गेंद पर विकेट मिला, सफलता मिली। 32 गेंद में 52 रनों की जरूरत है। फरदीन 1 पर बल्लेबाजी कर रहे, जीवन दान उनको मिला है और मोहम्मद नफीस न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। एक्शन रिप्ले में देखिए वो विकेट, बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आकाश जहांगीर बैक टू द पेविलियन चले गए हैं। फरदीन काजी को जो जीवनदान मिला उसका कितना फायदा और कितना नुकसान होगा वो देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला समय बताएगा। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, मोहम्मद और गौरेश नागवेकर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान पर। और फिर से अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, बल्ले से निचले हिस्से से लगी, स्क्वायर लेग बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते,
एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा। टोटल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अशोक जी, आप जब गेंदबाजी कर रहे हैं, मैंडेटरी पावर प्ले ऑन है, तब गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। और बहुत बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है। गौरीश जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। मोहम्मद एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, फरदीन काजी एक, MS धोनी 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और टारगेट है 55 रनों का। अभी आपके पास 31 गेंदें, 51 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, बहुत सुंदर गेंदबाजी, गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ का खिलाड़ी बहुत दूर है। 1 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया था, फरदीन और मोहम्मद ने। आखिरी गेंद पर सिंगल, फरदीन काजी रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। पहले ओवर के बाद रन संख्या 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। MS धोनी 55 रनों का पीछा करते हुए गौरीश के ओवर में 4 रन। सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। शानदार गेंदबाजी रही है गेंदबाज गौरीश द्वारा। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय गौरीश। पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। 5 रन 1 विकेट पर। गोवा की आन, गोवा की जान, गोवा की पहचान। और फिलहाल इस वक्त 5वें दिन का खेल, सागी प्रीमियर लीग 2024। स्कोर 5, 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद एक पर खेल रहे, फरदीन काजी बिल्कुल इस वक्त 2 पर खेल रहे, 3 गेंदों का सामना किया है। और लक्ष्य 30 गेंदों में 50 रनों का है। रोडेंट से गेंदबाजी करने के लिए विवेक मोहन। और विवेक मोहन ने अशोक जी बहुत ही अच्छा कैच लपका था। बहुत अच्छा कैच लपका था, जहां पर एक पहली सफलता मिली थी और आ चुके गेंदबाजी पर खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर। फुल टॉस गेंद खेला, गेंद को कवर पर मौका नहीं मिला और गेंद निकली एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। सुंदर स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था। फरदीन काजी के पास स्ट्राइक है और अगर फुल टॉस गेंद आएगी तो वो नहीं छोड़ने वाले। देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया। एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। विवेक की पहली गेंद फुल टॉस थी, थोड़ा पीछे चले गए और खूबसूरती के साथ बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया। बॉडी का बैलेंस बहुत ही बढ़िया था, शरीर का संतुलन बहुत अच्छा था और टाइमिंग एंड प्लेसमेंट सुंदर। और इसके कारण फरदीन काजी को 4 रन अर्जित करने का मौका मिला। स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर दूसरा प्रगति पर है। विवेक मोहन के पहली गेंद पर चौका, ऑफ साइड पर फ्लाइंग स्वीप। उसके साथ गली की तरफ खिलाड़ी पॉइंट है। डीप स्टक कवर, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। के बाहर जाके ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर विवेक ने कहा मुझे है मौका और अच्छी गेंद थी। बैकफुट पर लेके गए और बल्लेबाज फरदीन गिर गए हैं। विवेक ने आके एक बार फिर पूछा, कुछ एक बार फिर आपके लिए परेशानी है? ये क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना भी बहुत जरूरी। थोड़ी परेशानी है फरदीन के लिए, गिर गए हैं लेकिन मनोबल नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल, आज ये बात जरूर 2 बार जो कि गेंद भी लग चुकी थी बल्लेबाजों को, यहाँ पर थोड़े से बल्लेबाज गिर पड़े। और प्रशांत जी, आज एक और बात देखने को मिली, फिरकी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, ऑफ कटर, लेग कटर, ये देखने को मिले, लेकिन ज्यादा आज फुल टॉस भी देखने को मिले। आज के दिन में 5वें दिन में फुल टॉस गेंदें ज्यादा देखने को मिली। जी हाँ, ग्राउंड स्पन को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपको कॉम्बस की तरह पहना है। इनिंग ब्रेक में लाइन को क्लियर करना होगा। ग्राउंडस्मैन विवेक मोहन की गेंदबाजी, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी है। फरदीन काजी इस वक्त स्ट्राइक की रेंज पर। बैकवर्ड चले गए, गेंद को कट किया, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है स्ट्रोक के लिए। अच्छा स्क्वायर कट, थोड़ी खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री की तरफ बिल्कुल जा रही है और पॉइंट पर खराब फील्डिंग हो रही है। ऑन फील्ड अंपायर बिल्कुल देखना चाहेंगे क्या क्लीन तरीके से वो फील्डिंग बॉडी लाइन पर हुई है। पॉइंट पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट थी, फंबल हुए थे खिलाड़ी। क्या उसी वक्त उनका पैर बॉडी लाइन की तरफ चला गया या बॉल जो है बॉडी लाइन को टच हुआ? बहुत सारी चीजें हैं, देखा जाएगा। देखो, अच्छा शॉट टच, छोटी गेंद थी, बैकफुट पर कट किया था और थोड़ा सा वहां पर फिसले, गिर पड़े और देखा जा रहा है।
याच मैदानावरती 23, 24, 25 आणि 26 24, 25, 26 जानेवारी 2024 सॉरी 25 पुढल्या वर्षी अर्थात जानेवारीच्या 23, 24, 25 आणि 26 सलग 4 दिवस एक मोठी स्पर्धा इथे आयोजित केलेली आहे. आमदार मंत्री चषक शिवसेना असं हे या स्पर्धेचं नाव असेल आणि या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक तब्बल 1 लाख रुपये, द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 50,000 रुपये, मॅन ऑफ द सिरीज उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आणि फायनलचा मॅन ऑफ द मॅच यांना सुद्धा आकर्षक पारितोषिकं दिली जातील. या स्पर्धेची एंट्री फी असेल मात्र 8,000 रुपये आणि या स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल तर इम्रान फकजी, त्याचप्रमाणे मुख्तार उंड्रे आणि जुनेद फकीर यांच्याशी आपण संपर्क साधा. त्याचप्रमाणे इथे विलेज टू विलेज हे 16 संघ असतील. 2 दिवस विलेज टू विलेज आपल्याला सामने पाहायला मिळतील आणि अंतिम 2 दिवस आपल्याला IPL फॉर्मॅट सुद्धा इथे पाहायला मिळेल. तर क्रिकेटची आणि या स्पर्धेची खऱ्या अर्थानं मजा आपण घेणार आहोत. तर ज्यांना या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हायचं असेल त्यांनी इम्रान फकजी यांच्याशी संपर्क साधा. त्याचप्रमाणे आणखीन एक आपल्याला खुश खबर आहे. ते म्हणजे मेहर 11 टेम्पाले यांच्या माध्यमातून एक मोठी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे आणि या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असेल तब्बल 2 लाख रुपये प्लस एक आकर्षक ट्रॉफी. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल ते म्हणजे 1 लाख रुपये आणि आकर्षक ट्रॉफी. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 30,000 रुपये आणि आकर्षक ट्रॉफी. चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 30,000 रुपये आणि आकर्षक ट्रॉफी. या स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल तर आपण शहबाज अनवारे, मसूद गजगे, शोएब अलसुलकर आणि हादी कौचारी यांच्याशी संपर्क साधा. रॉयल बोर्ली आणि RCC अग्राव या दोन्ही संघांचे संघनायक यांना विनंती आहे सन्माननीय अथरभाई पंगारकर यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे आणि त्यांच्या वतीने चालू असलेल्या स्पर्धेमध्ये अर्थात रौप्य महोत्सवी ही जी स्पर्धा आपण आयोजित केलेली आहे या स्पर्धेची प्रथम क्रमांकाची जी ट्रॉफी आहे ती सन्माननीय अथरभाई पंगारकर यांनी इथे प्रोव्हाइड केलेली आहे. मी त्यांचे अगदी मनपूर्वक हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि त्यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते यानंतर होणारा जो सामना आहे त्या सामन्याचा टॉस करावा. तर मित्रांनो आता आपण जाणार आहोत पुन्हा एकदा बोर्लीच्या या ऐतिहासिक मैदानावरती जिथे चालू असलेला सामना आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे निखिल पारवे पहली गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर खेलते हुए 6 रन के लिए छक्के से शुरुआत की है. गेंदबाज महबूब. इसी बीच मैं RCC अग्राव इस टीम के कैप्टन से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप फौरन टॉस करने के लिए आए. जी हां, बैक टू बैक ये दूसरा छक्का निखिल पारवे के बल्ले से. नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज है वो सऊद पटेल, जिनके बारे में हमारे सहयोगी और महाराष्ट्र का एक बुलंद आवाज चंद्रकांत शेट्टे ने बहुत कुछ बताया.
सही मायनों में कमाल का ये खिलाड़ी है। जी हाँ, निखिल पारवे आज यहाँ पे 3 ही गेंदों में मैच खत्म करते हुए। वेल डन, मनपूर्वक तुम्हाला शुभेच्छा। आणि या सामन्याचा सामनावीराचा मानकरी ठरलाय रोहा तालुक्यातील आगरी बॉयज रोड या संघाचा निशी कर्णेकर। इस मैच का मैन ऑफ द मैच देंगे हमारे दोस्त जुएब हद्दादी के हाथों से दिया जाएगा। जुएब हद्दादी, इनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का इनाम दिया जाएगा। आमदार जुएब हद्दादी, ये दे उधर। ये आने वाले वक्त तक एक आमदार बनेंगे। हाँ, आसिम भाई उर्जुक, वेलकम, शुक्रिया आपका। हमारे आसिम भाई उर्जुक की टीम है। सन्माननीय जोहेबभाई हद्दादी यांच्या शुभ हस्ते सामनावीरास आपण सन्मानित करत आहोत। सामनावीर निशी कर्णेकर। उसी तरह हमारे स्कोरर मोहम्मद दर्जी, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमारे रॉयल क्लब को वक्त दिया है। माझ्या समवेत आहेत निशी। निशी, तसं म्हटलं ना तर तू मैदानामध्ये अप्रतिम खेळ करतोस, परंतु माईक वरती आल्यानंतर थोडासा लाजतोस। ठीक आहे, ही सुद्धा आम्हाला आदा तुझी आवडते, परंतु मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की तुझ्यावरती प्रेम करणारे अनेक खेळाडू आहेत। तुला पाहून आता मोठे होत असलेले अनेक छोटे खेळाडू सुद्धा आपण पाहतोय। तर या मैदानावरती आपण पाहतोय जिथे फलंदाजांना अगदी पोषक वातावरण आहे, पोषक खेळपट्टी आहे आणि त्या खेळपट्टीवरती सुद्धा तू अप्रतिम गोलंदाजी केलीस। फक्त याचं मला थोडक्यात वर्णन सांग। बोरली फेस्टिवल टुर्नामेंट खेळण्यासाठी खूप उत्सुकता असते, कारण की ही सर्वात इथली श्रीवर्धन पट्ट्यातली सर्वात मोठी टुर्नामेंट आहे आणि तिथे खेळायला मजा येते। ओके, तर हे होते निशी कर्णेकर, मॅन फ्रॉम रोहा रोड। सकते हम लोग किसके ऊपर और फिलहाल 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी, उस गेंद को बहुत सुंदर तरीके से ऑन साइड पर खेल दिया था। और उसके बाद में टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आई, एक लेग ब्रेक थी, उसके बाद में एक गेंद अंदर की तरफ आई। रमीज गेंदबाजी कर रहे हैं। खूबसूरती के साथ गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया, खिलाड़ी बिल्कुल तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते हो तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया है। चौथा ओवर प्रगति पर, स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर, स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शोएब कुरैशी उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। MS धोनी और रुपेश लिमन के बीच आज के दिन का बहुत ही बड़ा मुकाबला। फुल टॉस गेंद, इस बार स्क्वायर लेग पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, खराब फील्डिंग फॉर बॉल लॉस्ट द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। 2 रन मुकम्मल किए गए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई है, डगआउट में तालियां बज रही है। चौथे ओवर का खेल बीच मैदान पर जारी है। देखते हैं, फिलहाल कोशिश तो दोनों तरफ से जारी है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कौन किसके ऊपर भारी है। स्कोर फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कवर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, कवर पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मौका दोनों बैटर के पास। चौथा ओवर है, स्कोर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दोनों बैटर सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। सांघे प्रीमियर लीग 2024 आगे कर गेंद को खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक है फ्रंट फुट पर, लॉन्ग आउट पर बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैटर ने। फिलहाल 55 रनों का टारगेट है, 13 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 18 चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा मुकाबला। बारह गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। कुछ देर के लिए बिल्कुल लाइट चला गया था, तो इसके कारण आप लाइव टेलीकास्ट जो देख रहे थे, कमेंट्री नहीं सुन रहे थे, तो बिल्कुल इस वक्त लाइट जाने से बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट तो बंद नहीं होने वाला, क्योंकि टेनिस क्रिकेट .in द्वारा आप जो बयान देख रहे हैं उसमें वो सारा सिस्टम है। लाइट जाने के बाद भी लाइव टेलीकास्ट बरकरार रहेगा। 12 गेंदों में 17 चाहिए। आकाश में मुझे वो काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बीच मैदान पर संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। 12 गेंद में 17 तो खतरा भी है। MS धोनी 38 3 विकेट के नुकसान पर। बोलो उसने प्लीज। 12th मैन कंपल्सरी रहेगा कॉम बॉक्स में। रुपेश 11 रियाज अपनी बॉलिंग मान पर तैयार है, और इनके गेंदबाजी का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। 38 3 विकेट के नुकसान पर मलिंग का स्टाइल गेंदबाजी करते हैं। पिछले मुकाबले में लगभग 8 गेंदें इन्होंने फुल टॉस डाली थी, और जब गेंद को लैंड किया था सही इलाके में तब जाकर उनको विकेट मिला था। बिनती गेंदें आई थी। 12 गेंदों में 17, और फिलहाल इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। 11 गेंदों का खेल शेष। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेल दिया। फिलहाल बढ़िया फील्डिंग कवर पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, कामयाबी नहीं मिली। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैटर ने। स्कोर पहुंच चुका है 39 रन पर, 39 3 विकेट के नुकसान पर। 10 गेंदें 16 रनों की जरूरत है। एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई आप देख रहे हैं। मैदान जंग में बल्लेबाज बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए, और गेंदबाज मलिंगा बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टप्पा खाते और ऑफ स्टंप के बाहर चलेगी, और अंपायर नो बॉल का इशारा कर रहे हैं। नो बॉल का इशारा। डोंट आर्ग्यू विथ अंपायर।
मैच शुरू करना है, मैच के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करें। चले एक बार फिर मैच को कंटिन्यू करना है। बहुत ही अच्छा मुकाबला है, शानदार खेल अभी तक बीच मैदान पर। दोनों अंपायर की बात करते हो, अनुभवी अंपायर हैं। चलिए मैच कंटिन्यू करना है। बहुत अच्छा मैच है, सुंदर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज रियाज। मैच कंटिन्यू करना है। डोंट आर्ग्यू विद अंपायर। चलिए मैच शुरू करना है प्लीज। अभी देखिए 2 अच्छी गेंदें आई थी, बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। मोमेंटम आपके पास है, ये समय अगर जा रहा है तो इसका फायदा बल्लेबाजों को हो सकता है। मैच को जल्दी कंटिन्यू करना है। सुंदर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज रियाज। नो बॉल का इशारा हुआ। बहुत अच्छा मैच है, आपके पास बैंक बैलेंस है, गेंदबाज रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और दोनों के पास लेदर बॉल की अंपायर का अनुभव है, अविनाश और विश्वनाथ। मैच शुरू करना है। दो अच्छी गेंदें थी जिसमें बल्लेबाजों ने बड़े स्ट्रोक नहीं खेले। मोमेंटम आपके पास, मैच बहुत इंपॉर्टेंट, शानदार खेल। अब किसका अच्छा समय चला गया और किसका बुरा, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जब आपके गेंदबाज रिदम में है, नो बॉल का इशारा, अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। जब आपके गेंदबाज रिदम में है, अब फिलहाल ये नो बॉल। और फिलहाल 10 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। देखिए बॉल डिलीवर हुआ तभी जाकर अंपायर ने कहा कि ये नो बॉल है। देखा था कि वो थर्डमैन का खिलाड़ी बिल्कुल सर्कल के थोड़ा सा बाहर था, उसके कारण फिलहाल अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया है। 10 गेंदे जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। फ्रीड का इशारा अंपायर ने किया है। स्कोर 40, 3 विकेट के नुकसान पर। ब्रॉकल में गेंद थी, अच्छी गेंदबाजी। रियाज तो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं तो समझता था ये ओवर ये जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। मैच में अगर एक बार फिर आप थोड़ा सा रुकेंगे ना तो उसका फायदा अपोनेंट टीम को हमेशा होता है। लय में गेंदबाज लय में, बल्लेबाज भय में। 9 गेंदे 14 चाहिए। 41, 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया खेल मैदान के अंदर चल रहा। ऑफसाइड पर थर्ड मैच पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी हैं। ऊपर उठाया, बहुत ऊपर गेंद है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, लब का कैच, आउट। सफलता मिली है, तालियां बजी है। फरदीन बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। अब देखिए तालियों के गूंज। बहुत ही अच्छा मुकाबला, शानदार खेल मैदान के अंदर। 9 गेंदे और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। फरदीन बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। बहुत बड़ी सफलता। रियाज बिल्कुल रियाज करके आए हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ब्रॉकल में गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, लब का कैच। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग हुआ, आउट। वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। सांघी प्रीमियर लीग 2024 का 5वें दिन का खेल। दोपहर का सत्र, 8 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। रियाज कमाल कर रहे हैं आज, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। न्यू बैटर सुरेश कदम, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। फाइन लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी है बैटर सुरेश कदम के लिए। 8 गेंदे 14 रन चाहिए। MS धोनी टीम फिलहाल 41, 4 विकेट के नुकसान पर। और समर्थन दोनों टीमों के लिए बिल्कुल है।
कैच लपक लिया था लॉन्ग ऑन पर, खिलाड़ी ने तब जाकर वो तालियां बजी थी। रियाज ने विकेट प्राप्त किया था, लेकिन समय आपको ज़्यादा नहीं लेना है। रियाज के लिए फील्डिंग की अगर बात करें तो पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है। अब वो कवर का खिलाड़ी पॉइंट की तरफ चला गया, पॉइंट बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी वो कवर की तरफ आया, कवर पॉइंट पर, और एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी जो था वो बिल्कुल अब लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में आ गया है। फील्डिंग में बिल्कुल बदलाव किया गया। 8 गेंदे 14, उड़ा आसमान में, तारामंडल में, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये कैच लपक लिया, आउट। रियाज ने दूसरा कैच लिया। रियाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरी सफलता मिली है। लॉन्ग ऑन पर गुरु प्रसाद शानदार कैच लपकते हुए। गुरु हो जा शुरू। सुरेश कदम अपना दमखम नहीं दिखा पाए, आज अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। रियाज के लिए दूसरी सफलता, और ये विकेट गिर गया। देखिए किस तरह से विकेट गिर गया था। आगे गेंद थी, बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाहते, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर भी गेंद थी। ऑन साइड पर गुरु थे और गेंद के नीचे आए, अच्छा कैमरा वर्क, और उसके साथ गुरु का बहुत ही बेहतरीन कैच। सुरेश कदम बैक टू द पेविलियन। रियाज को मिली और एक सफलता। 7 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। जबरदस्त प्रदर्शन रियाज द्वारा। SPL 2024 7 गेंदे में 14 रनों की जरूरत है। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं। सामने रियाज है, मैं छक्का कैसे मारूं। ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। बीच मैदान पर प्रेशर बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर है, मोमेंटम गेंदबाज के पास। 7 गेंदे 14, एक अच्छी गेंद डालनी है रियाज को। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। पीटी जॉनसन, ये भी बल्लेबाजी बहुत उम्दा करते, लेकिन जिस तरह से आज रियाज ने गेंदबाजी की है, गेंद को सही इलाके में लैंड किया, टप्पा बहुत ही बढ़िया था, बल्लेबाज को परेशान किया। न्यू बैटर पीटी जॉनसन। रियाज तैयार। 7 गेंदे 14 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, और मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है, रोचक मुकाबला है। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी। बढ़ रहा था टेंशन। मैदान के अंदर आए पीटी जॉनसन, और इन्होंने जबरदस्त स्ट्रोक खेल दिया। कमाल का स्ट्रोक था, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। कड़क शॉट। 6 गेंदे 8। छह गेंदों का खेल, 8 रनों की जरूरत है। मैं एक बार भी समझ सकता हूँ MS धोनी के कप्तान की जो सोच थी बहुत बढ़िया थी। लेफ्ट हैंडर को भेजा गया ताकि गेंदबाज रियाज जो है राइट हैंडर के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनको अनसेटल करे, और एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए था। वो बड़ा स्ट्रोक बल्लेबाज पीटी जॉनसन ने खेल दिया। जब बढ़ जाता है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन। मैदान के अंदर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं पीटी जॉनसन। आपका समय समाप्त हुआ। एक खिलाड़ी आपको दायरे के अंदर लेना पड़ेगा। ऑन फील्ड अंपायर, समय समाप्त हुआ है। वक्त बिल्कुल इस वक्त समाप्त हुआ आपका। 6 गेंदे 8 चाहिए, 47, 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रमीज के हाथ में गेंद है, रोडेंट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। क्या मुकाबला चल रहा है और क्या माइंडसेट था। घर में टीवी सेट होना चाहिए, घर में सोफा सेट होना चाहिए। आपके पास 7 गेंदे हैं तो आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। डगआउट से सेट होकर मैदान के अंदर चले गए थे, और पहली गेंद पर जो हैट्रिक बॉल था उस गेंद के ऊपर आपने हमला किया। सिक्सर जड़ा प्रेस से रिलीज करने वाला छक्का था। 6 गेंदे 8। स्ट्राइक रन पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए। जोरदार अपील, बहुत अच्छी गेंद थी। सफल हुए थे इसलिए मेरे हिसाब से वो बच गए हैं। लेग बाय का इशारा अंपायर ने किया। 6 गेंदे 8, 5 गेंदे 7, एक दूसरे का मिलेगा 7 तभी तो बनेगी बात। 5 गेंदे 7। क्या मुकाबला चल रहा है, बहुत ही अच्छा बैटल है, अच्छी कॉन्टेस्ट। डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। आने वाली 5 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। रुपेश इलेवन और MS धोनी के बीच आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला। सांप और नेवले के बीच लड़ाई चल रही है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए पीटी जॉनसन, जिन्होंने बहुत ही शानदार आगाज किया है, लेकिन अब आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं।
गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, इस बार बीट हुए बल्लेबाज। तालियां बज रही है, तालियां बिल्कुल बजते भी मैदान के चारों ओर से तालियां बज रही है। बजेगी सिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। 4 गेंदें 7 चाहिए, ग्राउंड पर तैयार रहे। इनिंग ब्रेक में आपको थोड़ा सा मैदान के अंदर काम है। 4 गेंदें 7 चाहिए। स्ट्राइकर एंड पर पीटी जॉनसन। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, कवर के ऊपर से खेलता डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। 4 रन। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगा जोर और ये लगा शानदार 4। ब्यूटीफुल बैटिंग, शानदार स्ट्रोक पर जॉनसन द्वारा। मैच समाप्त नहीं है, एक अच्छी गेंद डाली है, एक अच्छी गेंद डाली है, मैच में आप कमबैक कर सकते हैं। 3 गेंदें 3। टिप ऑफ टर्म के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरा हो सकता है। बल्लेबाज आउट। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखी ऑन, गेम इज ऑन। 2 गेंदें 3 रन चाहिए। मुकाबला इंटरेस्टिंग है, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर, पैसा वसूल मुकाबला, नाखून चबाने वाला मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। और फिलहाल देखते हैं क्या होगा बीच मैदान पर। इट्स फेयर डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद थी, गाइडलाइन के अंदर से जा रहे, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ सुंदर गेंद, एंगल था, क्रीज के कोने का इस्तेमाल और लेफ्ट हैंडर आपके सामने है, आपने बीट किया और ये पिक्चर सुपर हिट चल रहा है। बहुत ही शानदार मुकाबला। 2 गेंदें 3 रनों की जरूरत है। जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का समय जो है ना, बिल्कुल कमाल का होता है। और इस वक्त अगर देखें तो एक तरफ उम्मीद है लेकिन एक तरफ डर भी है। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए विकी बोहिर ऑलराउंडर खिलाड़ी है नई मुंबई के। 2 गेंदें 3 चाहिए। 52 विकेट के नुकसान पर डगआउट में तालियां बज रही है जॉनसन के लिए, लेकिन इस मुकाबले में जान डाली है रियाज ने, रियाज और रमीज। 2 गेंदें 3 चाहिए। मुकाबला अगर टाई हुआ तो सुपर से ऊपर वाला मैच, सुपर ऊपर देखने का मौका मिलेगा। 2 गेंदें 3 चाहिए। फ्लाइंग स्ट्रिप एक गली पॉइंट कवर, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं, खतरा भी हो सकता है, डायरेक्ट हिट करने की जरूरत है। 2 रन मुकम्मल किए गए हैं, 1 बॉल 1 की जरूरत है। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला चल रहा है। दर्शकों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर ये मैच आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा दिल से तालियां बजाइए इस मुकाबले के। क्या जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर। 1 गेंद 1 रन की जरूरत है। 54 विकेट के नुकसान पर हीरो बनने का मौका बिल्कुल इस वक्त है बल्लेबाज के लिए, हीरो बनने का मौका गेंदबाज के लिए बिल्कुल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा, एक शेर बनेगा और एक ढेर बनेगा। भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो विपरीत स्थिति में कठिन रोल बेस्ट एक्टर को देता है। वो बेस्ट एक्टर कौन है। 1 गेंद 1 रन। अब जाकर टीवी अंपायर थोड़ा बिजी हो जाएंगे। जब बॉल जा रहा था उस वक्त जो खिलाड़ी बीच मैदान पर आया था, टीवी अंपायर देख रहे हैं, बिल्कुल क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया था। ब्रॉकन में अच्छी गेंद थी, आउट ऑफ द स्टंप, बढ़िया गेंदबाजी भी इन्होंने की है और पुल्लन गेंद थी। तो बिल्कुल इस वक्त ऑब्स्ट्रक्टिंग नहीं है। जिस तरह से वह खिलाड़ी आ रहा था तो वह बचने के लिए, यहाँ खिलाड़ी बिल्कुल बचने के लिए दूर से थोड़ा भागा, लेकिन दोनों खिलाड़ी के बहुत करीब थे। बहुत ही अच्छा मैच है। 1 बॉल और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत। स्कोर 54 विकेट के नुकसान पर कांटे की टक्कर मैदान के अंदर। रोचक मुकाबला है, कौन जीतेगा ये मुकाबला। क्या सुपर ओवर होगा, सुपर से ऊपर वाला मैच। जो खिलाड़ी बैठे हुए थे वो खड़े हो चुके हैं। क्या सुपर ओवर होगा। जैसे लग रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट का खेल चल रहा है। मागे टपला यष्टीरक्षक, पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक, उधळण्यात तुझा डाव।
ते तुला कधी देणार नाही धाव. या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव. मैदानावरती काय घडलंय? बाईचा इशारा झालाय, सामना जिंकलाय. इथे धाव नव्हती, यष्टीने केली चूक. काय घडलं होतं नाट्य मैदानावरती? क्या हुआ था मैदान के अंदर? ओहो हो, ये मौका था, बीट किया था, यहाँ बीट किया. विकेट कीपर के हाथ में गेंद है. ओ बहुत करीब. दूसरी एंड पर मौका था, दूसरी एंड पर भी मौका था, दोनों एंड पर मौका था. पहला मौका था स्ट्राइकर एंड पर, ये करीबी था, करीबी मामला था. और विकेट कीपर स्टंप के बहुत करीब थे, बल्लेबाज बहुत दूर थे. देखिए एक बार फिर क्या हुआ था मैदान के अंदर. एक बार देखिए, इस बार बीट हुए और विकेट कीपर देखिए, ओ कहां थ्रो कर रहे हैं. शिकार तो आपके सामने था. यहां भी देखिए गेंद हाथ में नहीं है. इस सीजन का सबसे रोचक मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला आपने देखा है और सारे हक्का बक्का है. आज पुनाजी 21 रन, रमीज 13 रन, सजीद 8 रन, मोहम्मद 8, शुएब कुरैशी 14 नॉट आउट, मोहम्मद नफीस 13 रन, फरदीन काजी 12, जॉनसन के 10, शुएब 1 ओवर 8 रन, बहुत महत्वपूर्ण 1 सफलता, जॉनसन 2 ओवर 7 रन 1 सफलता, सलीम 1 ओवर 9 रन, विकी बोइल 2 ओवर 19 रन, कोई सफलता नहीं है. गौरेश 2 ओवर 10 रन, बहुत महत्वपूर्ण 3 सफलता, शानदार गेंदबाजी ने. रियाज 1 ओवर 9 रन 2 सफलता, विवेक मोहन 1 ओवर 14 रन, कोई सफलता नहीं है. रमीज 2 ओवर 18 रन, कोई सफलता नहीं है. MS धोनी ये रोचक मुकाबला जीत चुके हैं 4 विकेट से. बहुत ही शानदार प्रदर्शन, पैसा वसूल मैच समाप्त हुआ, पैसा वसूल मैच था. और टेनिस क्रिकेट.in पर बहुत सारे दर्शक जो थे आज एंजॉय करते हुए हर मोमेंट को. तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा. मैन ऑफ द मैच जिन्होंने दिए अपने टीम के लिए बहुत खुशी, वो है शुएब कुरैशी. शुएब कुरैशी मैन ऑफ द मैच, गेम चेंजर. लेकिन मनोज विचारे साहब बहुत ही नाटक